Hello students, I Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya going to explain about contract of bailment. This is useful for BCom first year students. What is bailment? Actually, bailment is a French word that means to deliver. Bailment is a type of special contract, and since it is a contract, naturally all basis requirements of contract are applicable. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned for otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer, and the person to whom they are delivered is called the bailee. This is defined under section 148. So, there are two parties, one is bailer and other is bailee. Bailment means act of delivering goods for a specified purpose on trust. The goods are to be returned after the purpose is over. So, it can be said that the bailment contract is for temporary purpose. In bailment, possessions of good is transferred, but property ownership is not transferred. And the bailment can be only of goods as per section 2 subsection 7 of Sales of Goods Act. Goods means every kind of movable property that money and actionable claim. Thus, keeping money in bank account is not a bailment contract. Let's see the essentials and legal rules as to bailment. Number 1, contract. A bailment is usually created by agreement between two parties, bailer and bailee. Delivery of good. It is essential in bailment. The possession of good must be delivered by the bailer to the bailee. Next is no transfer of ownership. In bailment contract, ownership is not transferred. Bailee can use the good for some times. Delivery of goods for some purpose. The delivery of goods must be for some specific performance. Then return of specific goods. Goods are delivered to the bailee with the condition that the same good will be returned to the bailment after the accomplishment of purpose. Then movable goods. In bailment, the goods bailed must be movable. For example, if मान लीजिए कि किसी के यहाँ शादी है और उसको शादी में पार्टी देने के लिए टेंट एंड जो यूटेंसिल्स हैं उनकी आवश्यकता है, तो उसका वो टेंट हाउस वाले से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो पर्सन, और कुछ समय के लिए 2 और 3 डेज़ के लिए वो उन चीज़ों को ले सकता है, यूज़ कर सकता है. उसके बदले उसको कंसिडरेशन के रूप में पे करना पड़ेगा, और जो टाइम पीरियड है वो मस्ट होता है, और टाइम पीरियड 2 और 3 डेज़ जितने भी दिन का होगा उस टाइम पीरियड में वो उस
गुड को ऐसे यूज़ करेगा जैसे खुद वो उसका ओनर हो, लेकिन आफ्टर जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है उस गुड को वो रिटर्न कर देगा. अब डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू बैंक. द क्वेश्चन arises whether the deposit of money into bank is a bailment. So the answer is deposit of money into bank by a customer is not a contract of bailment, because the money deposited in the return is not returned in indenture, coins and notes deposits. दैट मीन्स कि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कोई नोट आप डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 5000 की 1000 नोट्स डिपॉजिट करते हैं, तो सेम नोट आपको जब आप बैंक से पैसा निकालना चाहेंगे तो सेम नोट आपको नहीं मिलेगी. लेकिन बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स आप बेली को दे रहे हैं वही सेम गुड आपको रिटर्न होगी. अब देन classification of bailment on the basis of benefit. Bailment exclusive for bailor's benefit, bailment exclusive for bailey's benefit and bailment for mutual benefit. ये बेनिफिट के बेस पर 3 टाइप के होते हैं. On the basis of willingness, voluntary bailment, express contract between the parties, जहाँ पर ये बोल के बता के लिया जाता है कि फॉर कितने देश के लिए चाहिए और कितना देना है. Involuntary bailment arise as per operation of law. Next is on the basis of rewards. Guarantees bailment, where neither the bailor nor the bailee get any remuneration, then it is guarantees. And non-guarantees bailment, when either the bailor or bailee get remuneration, then it is known as non-guarantees bailment. जो यूजुअली सारे बेलमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर 2 पार्टीज़ होती हैं, फर्स्ट इज़ बेलर एंड सेकंड इज़ बेली. तो ये 2 पार्टीज़ की कुछ राइट्स होते हैं, देन कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ बेलर. देयर आर सम राइट्स ऑफ बेलर. नंबर 1 इज राइट ऑफ टर्मिनेशन. बेलर हैज़ ए राइट to terminate the contract of bailment if bailee acts inconsistently with regards to goods. यदि बेली जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से गुड्स के साथ ट्रीट नहीं कर रहा है, तो बेलर को ये पूरा राइट है कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे. नेक्स्ट वन इज राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स. The bailor can demand back goods bailed at any time, even if he has lent it for a specific good. Then, right to file a suit against a wrongdoer. बेलर को पूरा अधिकार है कि वो अगर कुछ गलत होता है बेली के द्वारा, बेली ने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके कुछ काम किया है, तो वो उसके ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है. एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स. द ड्यूटीज ऑफ बेली आर द राइट्स ऑफ बेलर एंड बेलर कैन एनफोर्स दोज राइट्स बाय फिलिंग ए सूट अगेंस्ट बेली. तो ये तो थी राइट्स. इनको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो व्हाट आर द राइट्स. जो राइट्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 150, 149, 130, 150, 149, 158 एंड 159
and 164. तो यहाँ पर जो बेलर होता है उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब हम देखेंगे. ड्यूटीज़ उसकी क्या क्या है. ड्यूटीज़ टू डिस्क्लोज नोन डिफेक्ट्स. यदि गुड्स में कोई डिफेक्ट है और इस बात का पता बेलर को है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसके बारे में बेली को पहले से अलर्ट कर दे, बता दे. सेकेंड इज ड्यूटी टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस. यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस वेयर द बेलमेंट इज ग्रेटिट्यूअस एंड द बेली इज नॉट टू रिसीव एनी रिम्यूनरेशन, the baler shall pay bailey all the necessary expenses. For example, एक पर्सन गांव जाता है और वो अपनी एक गाय अपने पड़ोसी को देकर जाता है. तो यहाँ पर गुड क्या है, गाय. पड़ोसी जो है वो बेली है. अब अगर मान लीजिए कि गाय की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ पर जो बेलर है वो पर्सन उस गाय के इलाज, अगर पड़ोसी ने उस गाय का इलाज करवाया है तो उसका उसको पूरा पेमेंट करेगा. मतलब ये कि अगर गाय के ऊपर उस पर्टिकुलर पीरियड में गाय के ऊपर बेली ने कुछ खर्च किया है तो बेलर की ये ड्यूटी है कि उस एक्सपेंसेस को वो बियर करे. Third is bear risk for loss. A baler is to bear risk of loss or destruction if the bailey has taken prudent and diligent care of the goods bailed. अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो यहाँ पर भी बेलर को ही उस रिस्क के कारण जो लॉस हुआ है बेली को उसकी भरपाई बेलर को करनी होगी. ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली. ए बेलर हैज़ ए ड्यूटी टू इंडेमनिफाई बेली फॉर एनी लॉस ड्यू टू इनपरफेक्ट टाइटल इन द गुड्स बेल्ड. कोई भी लॉस होता है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे सकते हैं. मान लीजिए कि एक पर्सन कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहता है और वो एक टैक्सी बुक कराता है. यहाँ पर अगर वो टैक्सी का ब्रेक सही नहीं है, ब्रेक सही समय पे नहीं लगता था, ये जानते हुए भी जो ट्रांसपोर्ट का मालिक था उसने वो टैक्सी के ओनर ने उस टैक्सी को दे दिया, तो उस कंडीशन में अगर बेली उस टैक्सी पर बैठता है और उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और बेली को इंजरी होती है तो ऐसी कंडीशन में बेलर उसकी ड्यूटी है बेलर की कि इस टाइप के लॉस को वो फुलफिल करेगा. ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ बेलमेंट, यानी कि टाइम पीरियड. आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ए बेलर हैज़ टू रिसीव बैक द गुड्स एंड द गुड्स should be same. तो ये थी rights and duties of baler. नेक्स्ट है rights of bailey. rights of bailey. rights of bailey को अंडर सेक्शन 151, 157, 160 एंड 163 में डिफाइन किया गया है. right to interpelled. Interpelling is a civil procedure that allow a plaintiff or defendant to initiate a lawsuit in order to compel two or more parties to litigate a dispute. If any person other than the baler claims the good, bailey may apply to court to stop the delivery. Second is
Right against third party. If a third person wrongfully deprive Bailey to use the good, bailed, or cause any injury, then Bailey is entitled to such remedies which are available to real owner. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने बताया था कि मान लीजिए कि एक पर्सन ने एक टैक्सी हायर की और वो उसको डोंगरगढ़ जाना था। उस पर्सन ने उस टैक्सी को लिया, खुद यूज़ करेगा ऐसा बोलकर उसने लिया, लेकिन उसने अपने दोस्त को दे दिया और उसका दोस्त जो है वो उस टैक्सी से एक्सीडेंट कर देता है, टैक्सी डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर जो टैक्सी का ओनर है वो उसको पूरा जो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में उसको पूरा राइट है कि वो उस बेली से अपना जो भी कंपनसेशन है वो पूरा ले सकता है। और अगर उसको ये पता चलता है कि वो रॉन्ग यूज़ कर रहा है, रॉन्गफुली उसको यूज़ कर रहा है बेली, या टैक्सी उसने लिया था अपने जाने के लिए और वो उसको टैक्सी के रूप में उसमें पैसेंजर बैठा रहा है, ये भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उसको पूरा राइट है कि वो अपने गुड्स को वापस ले ले और कंपनसेशन के लिए भी क्लेम कर सकता है। राइट टू पर्टिकुलर लेन व्हेन ए बेली हैज़ rendered some services or skills on the good, he had right to particular lane unless he is paid. उसको एक पर्टिकुलर लेन जब तक कि उसको उसका पेमेंट नहीं हो जाता तब तक के उसके पास अथॉरिटी रहती है कि वो उस गुड को अपने पास ही रोक कर रखे। राइट ऑफ जनरल लेन, बैंकर्स, फैक्टर्स, attorney of high court, policy brokers will be entitled to retain as a security for a general balance of account any goods billed to them. तो राइट्स इसमें जो राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, उसको कंपनसेशन लेने का पूरा राइट है। दूसरा है राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर वो नेसेसरी एक्सपेंसेस उसने कुछ किया है बेली ने उस गुड के ऊपर, तो उसको भी उसका पूरा राइट है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस को बेलर से ले ले। एंड राइट टू रिटर्न द गुड्स टू एनी ऑफ द जॉइंट बेलर, अगर बेलर जॉइंट हैं यानी कि मोर देन वन पर्सन, दो या दो से अधिक लोग हैं, तो बेली को ये राइट है कि वो जब गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो जॉइंट बेलर में से किसी को भी वो उस गुड को रिटर्न कर सकता है। अब देखते हैं व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर गुड्स with his own, and duty to return any profit out. These are 4 duties which are essential for Bailey. Number 1, duty of reasonable care. सामान्य परिस्थितियों में एक नॉर्मल माइंड वाला, साउंड माइंड वाला पर्सन जो कर सकता है उसी तरह से उस गुड्स की देखभाल करनी चाहिए, ये बेली की ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी है कि उसका अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने अपने दोस्त मोहन से एक कार ली और ये कहकर लिया कि मैं इसको, मेरी मदर बीमार है, उसको हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए मैं कार लूँगा, और उसके बाद में वो उस कार को लेकर टैक्सी के रूप में यूज़ करता है और पैसेंजर्स को बैठा के उनको छोड़ता है और वो कुछ उससे अर्न करता है। तो ये क्या है, अनऑथराइज्ड है और अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कार कहलाएगा। और यहाँ पर फिर वो
बेलर जो है वो अपनी कार को वापस ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से दोस्त से उसने कार लिया था, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो बेलमेंट किया गया है वो विदाउट कंसिडरेशन किया गया हो, ऐसी कंडीशन में भी, यानी कि निःशुल्क निक्षेप हो। ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विथ हिज ओन। अगर आपके घर में कोई फंक्शन है और आप टेंट हाउस वाले से क्रॉकरी या यूटेंसिल्स लेते हैं, तो आपका यानी कि बेली की ये ड्यूटी है कि वो उस यूटेंसिल्स को अपने बर्तनों के साथ या यूटेंसिल्स के साथ मिक्स ना करे, और जो टेंट हाउस वाले के यूटेंसिल्स हैं उनको वैसे ही वापस करें। जनरली आपने देखा होगा कि ऐसे यूटेंसिल्स पर कुछ पेंट से या कुछ मार्क किया रहता है। ड्यूटी टू रिटर्न एनी प्रॉफिट आउट। अगर कोई प्रॉफिट होता है, फॉर एग्जांपल ए ने बी के पास अपनी काऊ रखी और कहा कि 1 महीने के लिए मेरी गाय की देखभाल करना है। 1 महीने के अंदर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। तो जब 1 महीने के बाद जो बेलर है वो आएगा, तो बेली की ये ड्यूटी है कि वो गाय के साथ साथ उस बछड़े को भी रिटर्न करे। बछड़े को वो अपने पास नहीं रख सकता है। तो ये थी ड्यूटीज़। और क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती है, ये मेन इसमें कुछ केसेस भी हुए थे, जैसे बिलासपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड वर्सेस मध्य प्रदेश सरकार का केस इस विवाद में हुआ था कि अपना जो वैन थी, वैन को अपना कैश बॉक्स शाम को पुलिस वाले के माल खाने में रखने की अनुमति दी गई थी, पुलिस उच्च अधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी। एक रात को माल खाने से कैश बॉक्स सहित गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार इस क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें असावधानी बरती गई है। इसमें दूसरी कंडीशन जो मेन होती है वो ये होती है कि बेली को चाहिए कि वो जो भी शर्तें हैं उनके विरुद्ध वो कोई भी काम ना करे और उस माल का अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे। अब इसमें आता है 2 तरह के लेन ग्रहणाधिकार, पर्टिकुलर लेन एंड जनरल लेन। पर्टिकुलर लेन ये अवेलेबल होता है, इट इज़ अवेलेबल टू द बेली अगेंस्ट सच गुड्स in respect of which he has rendered some service involving the exercise of labor or skills. And general laws, it entitles a person to retain the possession of goods belonging to another for general balance of account. और जनरल लेन के अंडर में आते हैं बैंकर्स, फैक्टर्स, वारफिंगर्स, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स एंड पॉलिसी ब्रोकर्स may, in the absence of a contract to the country, retain as a security for a general balance of account any goods billed to them, but no other person has a right to retain as a security for general balance goods billed to them unless there is an express contract to that effect. अब बेलमेंट में एक और टॉपिक है और वो है फाइंडर ऑफ गुड्स, खोई हुई वस्तु को पाने वाला व्यक्ति, फाइंडर ऑफ गुड्स, या पड़ा हुआ माल पाने वाला व्यक्ति कौन होता है। इसको धारा 71 में इसको डिफाइन किया गया है। ए पर्सन हु comes by an article is not obliged to pick it up, but if he does so or take charge of it, he becomes a bailee, and such person is called finder of goods. Finder of goods is in position of bailee and enjoys
all the rights and duties of बेली। धारा 71 के अनुसार एक व्यक्ति जिसे किसी दूसरे व्यक्ति की खोई हुई वस्तु मिलती है वह उसे अपने संरक्षण में लेता है, तब वह उस वस्तु का निक्षेप ग्रहीता बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए को कोई एक पर्स मिलता है या वॉलेट मिलता है और वह उसको उठा लेता है, तो वह बेली बन जाता है और उसके बाद उस पर्स को खोलकर वह देखता है, अगर उसमें कोई एड्रेस है और उस एड्रेस पर वह उस पर्स को पहुंचाता है, तो जो एड्रेस रहता है या जो पर्स का ओनर है जहां पर वो जिस एड्रेस पे जाता है वो उसका बेलर हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में उस बेली को यानी कि ए को पूरा राइट है, वैसे ही जो राइट्स बेली को मिले हुए हैं। तो उसका राइट्स क्या क्या है? राइट ऑफ फ्लेम, ग्रहणाधिकार, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि उस जो लॉस्ट थिंग थी या गुड्स था उसको उसने पाया और उसको सही पते पर पहुंचाया, वहां आने जाने के लिए उसने कुछ खर्च किया है, तो वो उस वस्तु को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि उसके खर्च को उसे दे ना दिया जाए। और ये कौन देगा? उस वस्तु का मालिक। दूसरा है सेकंड इज राइट ऑफ यू ऑफ रिवार्ड। अगर उस खोई हुई वस्तु पर किसी ने कोई रिवार्ड या कुछ देने का ऐसा रिवार्ड देने के लिए उसने पेपर में पब्लिसिटी किया था और वो रिवार्ड के बारे में अगर उस बेली को पता है जो कि उस वस्तु को उस पर्सन तक पहुंचाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिवार्ड लेने का भी अधिकारी है। अगर उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो उस खोई हुई वस्तु को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक कि उसे रिवार्ड ना मिल जाए। राइट टू सेल। When the goods are perishable in nature, where the law charges exceed 2/3 of value of good. राइट है, खोई हुई वस्तु को पाने वाला व्यक्ति उसके ऑनर को ढूंढता है और अगर नहीं मिलता है और वो गुड्स ऐसी है जो कि खराब हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में वो उस वस्तु को बेच सकता है। स्वामी का पता ना भी लगे, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसा है कि जब उसके ओनर का पता नहीं मिलता है तो वो पर्सन उस वस्तु को बेच सकता है। यदि वस्तु नष्ट हो जाएगी, इसका अंदेशा हो, तो उसका अधिकांश मूल्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। और दूसरा, जब उस वस्तु के संबंध में पाने वाले के व्यय उसके 2/3 पार्ट तक वैल्यू तक पहुंच गए हों, इसका वर्णन धारा 169 में किया गया है। अब देखते हैं ड्यूटीज़ क्या क्या है। ड्यूटीज़ ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। नंबर 1 इज़ टू टेक ड्यू केयर ऑफ गुड्स। जो उसको गुड्स मिली है उसको वो सही देखभाल करेगा, उचित देखभाल करेगा। इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 151। टू फाइंड द ट्रू ओनर जो माल का असली मालिक है उसको वो ढूंढने की कोशिश करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। मस्ट नॉट यूज द गुड्स ऑफ हिज पर्सनल पर्पस। जो फाइंडर है, फाइंडर ऑफ गुड्स को उसकी ये ड्यूटी है कि वो उस गुड को जो कि उसे मिली है उसको वो अपने पर्सनल यूज़ ना करे या अपने निजी माल के साथ वो ना मिक्स करे। ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। और मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द रियल ओनर इफ ही इज फाउंड। और यदि माल का स्वामी मिल जाता है तो उसको उसका माल वापस करना है। इसका वर्णन धारा 160 में किया गया है। थैंक यू। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका रेफरेंस था एंड पब्लिशिंग हाउस की बुक से भी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है।